So we are here at Hum Bridal Couture Week. ये चमक धमक, ये खूबसूरत environment, flower decorations, brands, designers, models, celebrities, makeup artists और क्या कुछ नहीं है यहाँ पे. आप हमारे साथ रहिएगा only on Next Gen Talk क्योंकि हम आपको मिलवाने वाले हैं बहुत से सितारों से, इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर से. तो हमारे साथ रहिए. We have Abdul Wahab with us. He's an actor, model, and he's a Gen Z as well. So let's talk to him. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? Oh, thank you so Oh much. my God, you are looking so amazing. You look gorgeous yourself. Thank you so much. Who you are wearing today? I'm wearing my design because I'm a designer too. Okay. And can you please tell us about something? These pins and colors and everything. Well, to be very honest, it's a blazer I designed by myself. Okay. And there is a creativity of safety pins on it. There is a That's really choker from a mother. I was gonna ask you about that. What is about that? Well, it's my mother's choker. Okay. And I was like, Amma, I need to stylize myself. So she was like, ab ye reh gaya hai. And she allowed you to. Yeah, I was like, Amma was like, dhyan se pehna, dhyan se leke jana. And you know what? Bell bottoms can never go off the fashion. Never, never. And it's something that you know that how to carry it. So as far as you know how to carry your fashion, everything is cool. Anything for Hum Couture Week? Well, Hum is a platform where every designers come everywhere to celebrate fashion, to celebrate actors and everything. I guess it's the biggest platform of Pakistan. मुझे ऐसा लगता है ऐसे मज़ीद platforms होने चाहिए और साल में एक शो नहीं होना चाहिए, 3-4 होने चाहिए जहाँ पे हम लोग interact करें, मिलें सारे. Now I'm gonna ask you very toughest question. Oh, please. Who is your favorite designer? Okay. Well, who is my favorite designer? Well, I'll be very honest with you. It's Fahad Hussain. And by the way, I'm here to support my friend Shoaib Ismail. I was here for him. And then I was in his show. It was a blast. It was good. It was good. But you know what? The best part is that new designers are coming. हमें नई कलेक्शन देखने को मिल रही है, नए प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि नए नए लोग आ रहे हैं. So yeah. It's really nice talking to you. Thank you Same so here. much. Thank you so much for having me. We have Gulshan and Anarkali and oh my God, look at their outfit. Like wow, हम किसी मुगलिया दौर में आ गए हैं. क्या जबरदस्त outfit. अपने outfit के बारे में बताएं. Thank you so much. This basically is a custom piece by Zara Shah Jahan. And this gorgeous jacket is from my favorite designer, Kamyar Rokni. Very nice. And tell me the reason why you chose to wear this. I think I always like to experiment and step out of the boundaries when it comes to fashion. So this was the inspo that, you know, doing it a little dramatic, doing it extra. So that was it. So everybody and stop and look at you. Wow, what are you wearing? Yeah, it's amazing. And Anarkali, oh my God, just act like something. I want you to act. No, just like this. Do it with me. Do it with me. गाना भी चल रहा है साथ साथ. You are looking amazing. First of all, tell me about your hairstyle. I think the whole outfit was created around pigeon and crow. There was more of the pigeon. मेरे पास इस तरह के बहुत पर पड़े हुए थे, तो I wanted to really was. So you have furs in your hair. Yeah. And what about your makeup? It's the same. The inspiration goes from the crows and pigeons. So you are comfortable with your hairstyle. Yeah, Very nice. And please tell me about your name. Why Anarkali? because I've been really inspired by the Anarkali and the culture around it. But now my real name is Anarkali Disco on the Instagram. So that's how people call it. कि Anarkali अब disco हो चुकी है. Anarkali Disco. Chali, we have Anarkali Disco with us. And your Instagram? Gulshan Majid. Gulshan Majid. Okay, Gulshan Majid, tell me you are an actor. Yes. Act something for us. Just, I can say that. Do it like this is something like, you know, doctor के पास जाए अच्छा No, check कर ले. just act something. बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल. क्या बात है. He is truly an actor. और मुझे बताएं, आपने भी हेयर स्टाइल ये एक आपने बाय पर्पस निकाली हुई है. And about your mustache as well. Mustache is constant. It's been like there for almost 2 years. Okay. And this hairstyle I usually have a mullet. But this time around, you know, I thought like why not switch it up? Okay, very nice. And what about Hum Bridal Couture Week?
One word or one line for bridal couture week. Crazy. Crazy. And you? Stunning. Stunning, of course. और मुझे बताएं आप हर साल अटेंड करते हैं? No, this is actually my first time. Oh my God! And how was your experience? I think it was great. I was actually here for my friend. His mother was displaying her collection, and I think that was a stunning show by Sophia. I really enjoyed it. It was very refreshing. बाकी जो designers हैं, I think उनका काम भी अच्छा था, but I particularly enjoyed that show more. Very nice. And what about you? It's my first time too. Anybody, one of you can sing for us, please? Sing. Yeah, I want to listen that. You know that old songs and that element we want to listen. I have a sound. I sound like a goat when I When I see you now, I feel like you can sing. So you have to sing for us. Gulshan, you have to sing for us. दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे. Very nice. Thank you so much. Literally, it was amazing talking to you guys. Thank you so much. Thank you so much. So we have Hamza Razak with us. He is with JDO team and he has been attending this bridal couture week for several years. So let us chit chat with him. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, Hamza? Yeah, I'm good. What about you? मैं ठीक. मुझे बताएं कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? एक्सपीरियंस तो अच्छा जा रहा है. ऊपर से आप आ गई हैं तो ऑब्वियसली बात है. चार चांद लग गए. अच्छा, oh my God. अच्छा हमजा, मुझे ये बताओ कि आप तो हर साल अटेंड करते हो. क्या ऐसा डिफरेंस आपको लग रहा है जो होता जा रहा है ड्रेसिंग में, फैशन डिज़ाइनर्स में और सारे थीम में? काफ़ी चीज़ें ग्रो कर रही हैं और मेरा ख्याल है कि हर ईयर जो है ना वो काफ़ी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं फैशन के अंदर और आर्ट के अंदर और कल्चर के अंदर. ओके हमजा, मुझे बताएं कि आपको किस तरह का डिज़ाइन पसंद है? ब्लैक्स पसंद है, ब्राउन्स पसंद है, या अभी जैसे हमारी बात हुई थी उन्होंने गले में नेकलेस पहना हुआ था, तो आप किस तरह के फैशन पसंद करते हैं? मुझे तो वैसे बिल्कुल सिंपल और मिनिमल ड्रेसिंग हो, नीट एंड क्लीन. Neat and clean. What do you mean by neat and clean? बस समझ आ के चाह रहा काफ़ी है. Very nice. Okay. अच्छा, can you rate your outfit cost नहीं बोलूँगी, rate your outfit please. यार ये आप खुद ही दे दें, मैं इससे कुछ भी नहीं बता सकता. Okay, you look amazing. It's like 8 out of 10. Okay. Now you have to rate my outfit. Yeah, you always beautiful, mashallah. और I give 10 by 10. Okay, I am 10 by 10. Thank you so much, Hamza, for your time. Thank you so much. मुझे पता है हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, इसलिए आपने ओरिजिनल गाना जाके सुनना है. We have Faizan with us. He is hero in this song. Let's chit chat with him. Assalamu alaikum Faizan. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. ये मेरा 4 टाइम एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत अच्छा. मतलब आप रेगुलर जो है? जी, मैं आ रहा हूँ 4 साल से मुसलसल आ रहा हूँ. Okay. और इससे पहले कराची में था, तो कराची में FPW होता था, वहाँ जाता था. Okay. अच्छा, मुझे बताएं कि आप और भी सॉन्ग्स में आपने एक्ट किया है? नहीं, ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था. अभी एक और रिसेंटली आएगा सॉन्ग. अच्छा, और वो कौन सा सॉन्ग है? वो हिनको का है, पंजाबी का. अरे वाह वाह, पंजाबी का तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है. आजकल लोगों ने सब छोड़ दिया और पंजाबी जो है वो गाने, मैंने तो सुना गोरे भी नाचते हैं पंजाबी गाने. पंजाबी सबको अब आजकल समझ आ रही है, पहले नहीं आती थी, अब सब. क्या बात है, क्या बात है. मुझे बताएं आपका फेवरेट डिज़ाइनर कौन है? मेरा कुकी कॉन्सेप्ट. और क्यों? वो मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं. नहीं, ये तो फिर गलत है ना. आप बेस्ट फ्रेंड को फेवरेट नहीं कह सकते. सुने ना. और इसके अलावा मैंने फाद हुसैन के काफ़ी ज़्यादा शूट्स किए हैं माशाल्लाह. फाद के साथ मेरा बड़ा अच्छा कॉन्टैक्ट है, वो भी बड़ा अच्छा बंदा है. और HSY तो आपको पता है, बॉस ऑफ फैशन इंडस्ट्री. अच्छा, मुझे बताएं कि आपको अच्छा सा गाना सुना दें. रंगीलो रुत आयो रे रुत आयो, एक छोरा एक छोरी करे कांच की डोरी, आयो रे रुत आयो रे रुत आयो. क्या बात है. थैंक यू सो मच फैजान. इट वाज ब्लास्ट टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. हमारे साथ इतने बड़े बड़े सितारे, सेलिब्रिटीज़, लिटरली मुझे इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे. क्या खूबसूरत इन्वायरमेंट है और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उन्होंने तो इस इवेंट को और 4 चांद लगा दिए हैं. सो मेरे साथ मौजूद हैं जीनत,
आगे नहीं बताऊंगी, आगे आप उनकी खूबसूरती देख के खुद ही अंदाज़ा लगा ले ये कौन है। जी हाँ, ये बटनी है। तो मुझे बताएं आपकी खूबसूरती का राज यही है क्या बटनी है? देखिए, एक तो बटनी भी है और एक है मेरे माँ बाप प्यारे हैं, तो मैं भी ऑफ कोर्स प्यारी होंगी। और उसके बाद फिर मैं हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, तो फिर खुद ही मेरे नाम का मतलब ही खूबसूरती है। तो जीनत नाम है तो खूबसूरत तो होंगी। बिल्कुल, यू आर माशाल्लाह सो मच प्रीटी। और आपने जिस तरह अपने आप को कैरी किया हुआ है, द वे यू आर कैरिंग योर सेल्फ, आपने अपने बाल जिस तरह बांधे हुए हैं, मुझे बताइए आपने सारा मेकअप खुद किया? नहीं, मैं हाउस ऑफ ब्यूटी सैलून पे गई थी। वहाँ पे मेरी प्रमोशंस चल रही थी। ये नेल्स भी उन्होंने ही करवाए थे आज, क्योंकि मेरी बर्थडे है। तो फिर प्रिंसेस ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। तो हमें भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रीना। ऐसे ही खुश रहें। क्या बात है। अच्छा जीनत, मुझे बताएं, आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं, और क्या कुछ है मुझे बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है मेकअप आर्टिस्ट है। उसके बाद मैं टीचर हूँ, मैं मेकअप की क्लासेस देती हूँ। और देन फिर मैं टिकटॉक पे आई, तो टिकटॉक पे फिर छा गई। हाँ, रहते हैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ, प्रमोशंस करती हूँ, जैसे डिफरेंट ब्रांड्स की, रेस्टोरेंट्स की। क्या बात है जीनत, मुझे बताएं आपकी खूबसूरती का राज। आप इतनी एलिगेंट लग रही हैं, मतलब आपने साड़ी को जिस तरह कैरी किया हुआ है, पल्लू को, और सारा कुछ आपने कैरी किया, और जो लाल गुलाब आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, मुझे बताएं आप ये जो अपने आप को कैरी करती हैं, इसका सेंस आपको कहाँ से आता है? मैं कहती हूँ गुलाब का तो पूछे ही ना। मुझे नहीं पता था कि आज मेरी एक विश पूरी होगी, और मेरी एक विश थी, तो अब वो विश मेरी पूरी हो रही है। क्या मुझे भी बताएं प्लीज। मतलब मेरी यही विश थी, लड़कियों की यह विश होती है। मैं ऐसे हजूम में हूँ, कोई लड़का आए और कहे तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, और वो मुझे दे, और जिसने किया उसका मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि वो कर सकता है। डोंट टेल मी, ये हुआ है अभी यहाँ पे? हाँ, मेरा दोस्त है बहुत पुराना, मेरा बड़ी, हम काम करते हैं साथ में, शूट्स करते हैं। तो उसने दिया मुझे ना। वो कह रहा था मैं से रहा ही नहीं गया, इतनी प्यारी लड़की कौन खड़ी है। कहते जब मैं पास आई तो तुम थी। मुझे अच्छा ये बताइए टैटूज के बारे में। ला तफ मनशी, ये क्या लिखा हुआ है? ये बहुत सारे अक्सर लोग मुझसे टिकटॉक पे मैसेज करते हैं, इंस्टा पे मैसेज करते हैं कि मतलब ये टैटूज क्या मतलब है ना। इसका मतलब है क्या, खुदा के सिवा किसी का खौफ नहीं रखना। क्या बात है। और आपने उसको यहाँ पे लगाया हुआ है, और इस टैटू का बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई और ये गुलाब है। इसका मैं ये मकसद है, इसलिए बनाया है। क्या मकसद है हमें बताएं। बस आप समझ बता दें। नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं समझना, आप हमें बताएंगी। देखें, तितली फूलों पे बैठती है, उसकी खुशबुएं पसंद है, ठीक है। और तितली उड़ती रहती है। फूल राजे के पास होता है, राजा लड़की को पकड़ना चाहता है, मगर तितली उड़ती रहती है, वो फूल पे बैठ नहीं सकती। ये मोस्टली बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं बताती नहीं हूँ, बट ये मेरा माइंड है, मैंने इसलिए बनाया। शी इज एक्चुअली अ ब्यूटी विद ब्रेन। लिटरली उन्होंने कितने दिमाग से जो है अपने टैटूज पे फोकस करके बनवाया है, वरना लोग जो है मतलब आप देखें ना, गुलाब है, गुलाब मर्द देते हैं कि औरत इम्प्रेस होगी, औरत को गुलाब दिया जाएगा, मगर मैं तितली हूँ। मैं मर्द को बताऊँ कि मैं तितली हूँ, मैं इतनी जल्दी हाथ में नहीं आऊँगी। और अच्छा मुझे बताएं, आजकल टिकटॉक के जो ट्रेंड चल रहे हैं, बड़ा कुछ है टिकटॉकर्स के बारे में मुझे अच्छा, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, मुझे किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी। देखिए, टिकटॉक सभी अच्छे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, उसने अपनी कब्र में जाना है, किसी ने किसी का हिसाब नहीं देना। मेरा ये मैसेज उन सब टिकटॉकर्स के लिए है जिनके लिए तनकीद का सामना करना पड़ता है, जिनके लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं। बीच में मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनकी बातें की जाती हैं, मगर मैं यही कहूँगी खुदारा लोगों को जीने दो। जब लोग मर रहे होते हैं तब आप लोग पूछते भी नहीं हो कि आप लोगों ने कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ चाहिए, कोई एहसास से पूछते भी नहीं हो। तो अगर वो खुश हैं तो उन्हें खुश रहने दो आप लोग। तो मैं उन सबको जो है ना, जो मेरे दोस्त हैं, स्पेशली जिनके इंटरव्यूज़ अभी ब्रॉडकास्ट हुए हैं, उनके लिए बी ब्रेव। आप लोग पाकिस्तान का मान हो, तो इसी तरह ही अपने पाकिस्तान को। एक सेकंड, आप क्या कह रही है जिनके पॉडकास्ट हुए हैं? आप किसी को टारगेट कर रही हैं? आप मुझे बताइए। नहीं, मैं टारगेट नहीं कर रही, मैं उनको कह रही हूँ कि किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना काम वाइंड अप नहीं करो, आप लोग पर्दे पे आओ, दिखो, टिकटॉक बनाओ, आप खामोश नहीं रहो। मैं ये किसके पॉडकास्ट बने हैं हमें तो बता। नहीं बताऊँगी, नहीं मैं
बस मैं जिन जिन के हुए हैं मैं उनके साथ, उन लड़कियों के साथ, उन लड़कों के साथ, काशिफ ज़मीर के साथ। वो इतना अच्छा लड़का है, बाहर वो जो भी है, वो जैसा भी है, वो नकली चेनें पहनता है, वो असली पहनता है, ये उसका है, वो हमारे साथ अच्छा है। आप ये देखो, और वो इतना स्वीट है, इतना इज्जत करता है, इतना प्यार देता है। बिल्कुल ऐसी क्या बात है। एंड पे आपने अपने लिए इस खूबसूरती के लिए यहाँ कोई शेर गाना पढ़ना है या कोई गाना गाना? शेर तो मैंने आमदा ही नहीं। गाना सुना दो। मैं बताती हूँ, कोई मेरे लिए ये गाता है। भी करना प्लीज थोड़ा सा। हम दोनों किड्डा सोना तेनू रब ने बनाया, जी कर वेखदा रवा, किड्डा सोना तेनू रब ने बनाया। सारा रे बस इतना ही है। क्या बात है। थैंक यू सो मच जीनत, मुझे बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। हमने आपको बहुत सारे सितारों से मिलाया, मॉडल से, एक्ट्रेसेस से, लेकिन एक लूप होल रह गया था। वो यह था कि इनको खूबसूरत जो बनाता है वो कहाँ है। तो हमारे साथ मौजूद है हारून गिल और उनकी वाइफ रिदा हारून, जो बड़े बड़े सितारों को खूबसूरत बना के आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फिट फाट। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं कि ये जो आप इतना खूबसूरत बना देते हैं, शे गिल को आपने, सहर गुल खान Yes, हो गई, अली अली रजा रज़ा। हो गया, और क्या क्या और मल्टीपल मॉडल्स। मल्टीपल मॉडल्स। इतना टैलेंट आप में आया कहाँ से? मुझे लगता है बचपन से था। यस। कितना टाइम हो गया मेकअप आर्टिस्ट मुझे बने में? 12 इयर्स। 12 Yes. years। मतलब आप छोटे से थे तब से? यस। तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या चीज़ इंस्पायर की? क्या घर वालों ने रोका कि नहीं भाई तुमने इस फील्ड में नहीं जाना है, फील्ड अच्छी नहीं है, या सबने सपोर्ट किया? नहीं, स्टार्टिंग पे थोड़ा सा मसला हुआ, मगर उसके बाद मामा बाबा ने, Okay. फिर मेरी जब वाइफ आई तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। इसने कहा नहीं तुम ये कर सकते हो, ये सीन है। अच्छा मुझे बताएं, मुलाकात कहाँ पे हुई? आपको इनका कहीं मेकअप तो पसंद नहीं आ गया? नहीं, हम पहले से मेकअप आर्टिस्ट बनने से पहले से ही हम मैरिड हैं। क्या पसंद है आपको इनमें? सब कुछ। नहीं नहीं, कोई एक बात आपको बतानी पड़ेगी। बैग। 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 बैग के अंदर की और चीजें। जूते और ग्लोव्स। अच्छा ठीक है। मतलब आपकी ओह Yes. माय गॉड, लुक एट योर नेकलेस, दिस इज लुकिंग अमेजिंग। बताएं इसके बारे में। इसके बारे में कुछ भी नहीं, मैं शूट पे था अभी। मैंने कहा चले मैं जाता हूँ शो पे, और बस जो कबर्ड्स में पड़ा था मैं निकाल के पहन आया बस। अच्छा पड़ा ज़्यादा था मगर मैंने बारे इसके बारे में मैं थाईलैंड गया था शूट पे, और मुझे वहाँ पे ये बहुत फिट लगा था, और मैंने कहा ज़रा पाकिस्तान में इसको ट्रेंडिंग में लेके आएंगे एज अ चोकर। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन मुझे बताएं, इस आउटफिट के साथ आपने इसको पहनने का सोचा, आपने कैरी किया, आपने सोचा नहीं कि लोग कहेंगे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ब्लिंग ब्लिंग पहन लिया, या यू जस्ट से कहने दो जो कहना है? यस, अब लोग भी ये कहेंगे तो हम फिर क्या करेंगे उनको कहने दो। क्या बात है। आप बताएं, आप अपने आउटफिट के बारे में बताएं, वो भी इन्होंने डिज़ाइन किया है या आप अपनी चॉइस से पहन? बेसिकली खुद ही कंट्रास्ट हो गया था। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। एक्चुअली ये इन्होंने मेरे लिए ऑनलाइन मंगवाया था। चीटिंग करते पोल खोल दिया उन्होंने। अच्छा मुझे बताएं कि आप शेगिल के मेकअप आर्टिस्ट हैं, Yes. सहर गुल खान के, Yes, अली रज़ा के। अली रज़ा। आपने हमें सच सच बताना है, इनमें से मेकअप करवाते हुए सबसे ज्यादा हिलता कौन है? अली। अली रज़ा। प्लीज टिक के बैठा करें, इनको प्रॉब्लम होती है। और अली बेसिकली हम दोनों का स्टार्टअप था, तो कोई 7-8 साल हो गए हम लोगों को, और मेरा भी स्टार्टअप था, अली का भी स्टार्टअप था फैशन इंडस्ट्री में। तो फिर अच्छे दोस्त हैं, फिर गपशप लगती रहती है, मगर वो मना नहीं होता, वो हिलता है। वो कहता है हारून तुझे मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं ऐसे करना। अच्छा मुझे बताएं, सबसे ज्यादा सुकून से कौन बैठता है? कोई भी नहीं। अच्छा मुझे लगा था सहर गुल खान जो है बहुत एनर्जेटिक परफॉर्मर है, तो वो हिलती होंगी। नहीं, ज़्यादा हिलती हैं वो, हिलती है, लेकिन मगर सुकून से कोई भी नहीं कॉन्सर्ट मेकअप पे वैसे सुकून है। अच्छा मुझे बताएं कि ब्राइडल कटोर वीक के बारे में बताएं, आप कब से इसको अटेंड कर रहे हैं और आपको सबसे खास बात क्या लगती है इसमें? इसमें सबसे ख़ास बात ये है हम लोगों का जो एक स्ट्रगल है, ठीक है, क्योंकि बैक स्टेज अगर हम लोग इसको देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, ठीक है, और मतलब एक अच्छा लगता है, अब तो अपना अपना लगता है। अरे, क्या बात है। आज किसको तैयार किया आप? आज किसी को भी नहीं, क्योंकि नबीला's गाना है ये सारा। यस। बहुत
यस यस। मुझे बताएं, जब आपकी आर्टिस्ट जो है सामने से आ रही थी, क्या क्या गलतियां नजर आई आपको? मतलब लाइक वो डाइट्स पे रहती हैं, तो जाहिर बात है खाना पीना नहीं, खाली पेट वॉक करनी, वो बहुत डिफिकल्ट काम है ये बहुत। नहीं, मेकअप में आपको क्या में जाहिर देखें, बात है। आप उनके रेगुलर मेकअप आर्टिस्ट हैं, Yes. किसी और ने तैयार किया है, तो आपको क्या क्या फ्लॉज नजर मुझे आए? लगता है इसमें एक थोड़ा सा काजल ऐड करता तो वाओ हो जाना था। और बाल स्लीक इससे ज़्यादा और भी सकते थे। नहीं स्ट्रेट नहीं, स्लीक, मॉडल स्लीक बालों में प्यारी लगती है। यस। अच्छा, मुझे बताएं कि इन फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट करते हैं ब्राइडल कटोर वीक से उनके एज अ मेकअप आर्टिस्ट? मुझे लगता है फ्यूचर में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। यस। अगर आपको चांस मिले, कौन सा थीम करेंगे आप? मैं ज़्यादा वही नो लाइक जो सबिया साची चलता है, आंखें ब्लैक। देखिए, हम जब इंटरनेशनली देखते हैं फैशन शोज, तो उन्होंने बिल्कुल गेटअप बदला होता है, Yes. ज़ॉम्बीज़ भी बनाते हैं और सब कुछ करते हैं। लाइक अगर मैं करूँ तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल नेचुरल में जाऊँगा, सिर्फ स्किन के साथ खेलूँगा मैं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच हारून एंड रिदा, लिटरली अमेजिंग टॉकिंग टू यू गाइस। थैंक यू सो मच। So we have Rida Mirza with us, और she's shining like a star. Literally, she's a blogger and with that she's an influencer. आइए इनसे पूछते हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतना खूबसूरत ड्रेस इन्होंने पहना हुआ है, इनके मेकअप के बारे में, इनके ड्रेस के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रिदा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। मुझे बताएं, इतनी खूबसूरत लग रही है, ऐसे लग रहा है सितारा ज़मीन पे आ गया है। तो ड्रेस आपने चूज़ किया और किसका ड्रेस पहना है? क्लच आपका बहुत प्यारा है, टेल मी अबाउट। थैंक यू सो मच। ये ड्रेस है माइजी का और मेकअप मेरा अलियान ने किया है फ्रॉम एज सैलून, ठीक है। और ये क्लच मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा पुराना है तो मुझे याद नहीं है क्या। गोइंग परफेक्ट विद। थैंक यू सो मच। एंड व्हाट अबाउट योर इयररिंग्स? इयरिंग्स आर फ्रॉम ज़हीन कामरान। इनफैक्ट मेरी सारी ज्वेलरी ये सब ज़हीन कामरान की है, बिकॉज आई लव देयर ज्वेलरी, तो मैं हमेशा उनकी ज्वेलरी पहनती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है जब आप ड्रेसिंग करती हैं? तो आपको होता है कि मैंने, ज़ाहिर बात है लोग मुझे देख के फॉलो करेंगे, तो आप किस तरह चूज़ करती हैं, किस तरह अपना माइंड बनाती हैं कि भाई मैंने ये ड्रेस पहना है या नहीं पहना? ऑनेस्टली जब मैं कहीं जा रही होती हूँ तो मेरा एक ही रूल है कि जैसे मैं अपने आप को अच्छी लग रही हूँ ना, मैं वैसे ड्रेसअप करती हूँ। कि मैं कभी ये नहीं सोचती कि कौन आया होगा, मुझे कौन देखेगा, मैंने कैसे करना है। मैं हमेशा, और मुझे लगता है मैं सबसे अच्छी भी तब लगती हूँ जब मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती कि कौन है क्या है। आई जस्ट ड्रेस अप फॉर माई। अच्छा, जब आप अपनी मर्ज़ी से ड्रेसअप होती हैं, कभी फील हुआ हो कि नहीं यार मैंने ठीक नहीं पहना? हाँ, बहुत दफ़ा होता है, हमेशा 10 on 10 तो नहीं होता। अपने आप को कॉन्फिडेंटली आप बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ भी पहने, आप अपना कॉन्फिडेंस साथ लेके जाएं तो आप 10 on 10 लगते हैं। लुक एट हर, शी इज़ हेयर बिकॉज ऑफ हर कॉन्फिडेंस। और मुझे पता चल रहा है, दिख रहा है माशाल्लाह जो खूबसूरती इनके फेस पे, और आई थिंक आपके कॉन्फिडेंस की वजह से ही आपकी खूबसूरती है फेस पे। अच्छा, मुझे बताएं कि आप फैशन वीक अटेंड करती हैं, कितने टाइम से कर रही हैं, कितने देर से कर रही हैं? Well, it's been 3-4 years, 3-4 सालों से मैं कर रही हूँ, and it has always been good. Even this year, it's the second day, and I've had so much fun. It's always fun. Who is your favorite designer? That's a very tough one. Honestly, I cannot say one. There are so many mind-blowing designers out there, but I can name a few like HSY, Tayyab Muazzam, even Maizi, the dress I'm wearing, Fahad Hussain. मैं वही कह रही हूँ ना कि इतने ज़्यादा है कि एक नाम नहीं ले सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेकअप आर्टिस्ट आप चूज़ करती होंगी, ज़ाहिर बात है हमारे फील्ड में, इंडस्ट्री में बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन आपको कौन से मेकअप आर्टिस्ट ज़्यादा पसंद है? जो कलर्स कौन से चूज़ करते हैं? लाउड मेकअप, लो मेकअप, किस तरह के मेकअप? मुझे मेकअप आर्टिस्ट कौन से पसंद है, पहले बताया। सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट है जिससे मैं हमेशा कराती हूँ, इट्स अलियान। He always does my makeup, and then we have Shalu Makeup Studio. She does a wonderful job at makeup, and इसके साथ साथ there are too many, बहुत लोग हैं, अली खान बहुत अच्छा है, लेकिन अलियान and Shalu are my favorites. Tell me who you are wearing today. I'm wearing Maizi. Maizi, guys, just look at this outfit. Can you turn around it for us, please? Oh yes, amazing, mashallah, you are looking so gorgeous. One song for your own self. One song, that's a very tough one, but something like some Kareena का कोई गाना, because I'm a huge Kareena fan, so maybe Bebo.
बेबो गा नहीं सकती, Come on. ये नहीं कर सकती। She is our Bebo. Thank you so much, Bebo. You are literally looking like a Bebo. बहुत मजा आया आपसे बात करके. Thank you. Thank you so much. Thank you. Lovely beautiful. आपको मैंने सितारों से मिलाया, डिज़ाइनर से मिलाया, खूबसूरत चेहरों से मिलाया, लेकिन इतने क्यूट फेसेस इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं. सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं और पूछते हैं ये आखिर छोटी छोटी एज में क्या कर रहे हैं यहाँ पे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? महानूर. आपका नाम? मिसबा. हूर. फरवा. अब्दुल राफे. आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चिल करने आए हैं या कोई काम शाम भी करते हैं? काम शाम करते हैं. इतनी छोटी छोटी एजेस में आप लोग क्या कर रहे हैं? आई एम अ मीडिया बायर. मैं पढ़ रही हूँ. आई एम डूइंग MBBS. MBBS from MBBS फ्रॉम इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज. our future doctor, inshallah. And you? I'm a media planner. Media planner. आई एम अ मीडिया प्लानर एंड बायर एज वेल. बोथ. आई एम स्टिल इन स्कूल मैट्रिक. मैंने कहा है ना, ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ आ गए, क्या करने आए हो? एंजॉय करने आए. मॉडल देखी अंदर? जी जी कैसी लगी? अच्छी थी. सबसे प्यारी कौन लगी? नाम नहीं आता. मामा ने अलाउ कर दिया फैशन शो? जी जी मामा तो पहले ही चली गई थी. मामा साथ आई हुई थी? जी जी. ओके, तो मुझे बताएं. शौकीन है. अच्छा, मामा शौकीन है, मामा बेटे को साथ ले आती है ताकि घर से डांट ना पड़े. ऐसे ही है? जी जी. अच्छा, मुझे बताओ कि सबसे प्यारा जो आपको ड्रेस लगा किस डिजाइनर का लगा? डिज़ाइनर नाम किसका? डाइनर्स का बहुत प्यारा था. ओके, वेरी नाइस. अच्छा, मुझे बताओ कि क्या पढ़ते हो, किस चीज़ में इंटरेस्ट है? मैं अभी तो बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं है. ओके, फिर आगे जाए कंप्यूटर पढ़ने हैं, उसमें है इंटरेस्ट. कंप्यूटर हाँ, हैकर बनना है आगे जाके या डिजिटल क्रिएटर, क्या बनना है? हैकर तो खैर नहीं, AI में है इंटरेस्ट. जी जी. जेंसी हमारी हो और AI में इंटरेस्ट ना हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. अच्छा, मुझे बताओ कि कितना ये सेकंड टाइम आया या फर्स्ट टाइम आया? फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं. क्या बात है. छोटा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है. आपका नाम क्या था? अब्दुल राफे. अब्दुल राफे. इन्होंने बड़े होके AI स्पेशलिस्ट बनना है इंशाल्लाह, और हम लोगों ने इनसे जो है AI की सारी एडवर्टाइजमेंट इनसे करवानी है. मैं इनका नंबर लेने लगी क्योंकि मुझे इनका फेस देख के पता चल रहा है बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं. ऐसे ही है? कह सकते हैं, कह सकते फैशन शो अटेंड करने आए हैं लेकिन पढ़ाकू हैं. कह सकते हैं. डोंट बी शाय, इट्स ओके. नहीं नहीं, आई एम नॉट शाय. तो बड़ी खुशी खुशी शो देख रही हूँ. लेकिन झूठी तारीफ तो नहीं कर सकता ना बंदा अपनी. नहीं नहीं, इट्स ओके, आप कर सकते हैं. मैंने भी तो किया. मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ. मैं बहुत काबिल हूँ. इंशाल्लाह आगे जाके बहुत कामयाब होऊंगा. अपने पेरेंट्स को प्राउड. अपने पेरेंट्स को प्राउड करूँगा. वेरी नाइस. अच्छा, आप इधर आओ. क्या एज है? मेरी क्या लगती है? मुझे लगती है ऑलमोस्ट यू आर 19-20. आई एम 26. अरे माशाल्लाह, ये छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी शक्लें, लगता ही नहीं है. बट स्टिल 26, यू आर जेंजी, राइट? या आई एम. मुझे बताएं कि ये जेंजी आजकल क्या हो रहा है जेंजी में? कपड़े, जूते, इवन जो मूवीज देख रहे हैं और कहते हैं कि जेंजी अपने पेरेंट्स की सुनती नहीं है. कितना सच है? नहीं, मैं तो सुनती हूँ, और क्योंकि बॉर्न इन 2000 तो सॉर्ट ऑफ मिलेनियल का टच है, तो आई एम नॉट दैट जेंजी. बड़ी प्रॉब्लम है. मैं कहाँ फंस गया हूँ? ना मैं उधर ना मैं उधर, है ना? जी, एग्जैक्टली. क्या बात है. आप क्या पढ़ रहे हो? मैं मीडिया प्लानर और मीडिया बायर हूँ. एंड फ्यूचर क्या देखते हो? फ्यूचर क्या देखती हूँ, फिलहाल तो यही है, इसी में प्रोग्रेस करनी है. आगे किस तरह आगे जाना है, क्या है. ब्रांड्स के लिए काम करते हैं. इंशाल्लाह ब्रांड्स में भी एक दिन होंगे किसी बड़ी पोस्ट पे, इंशाल्लाह. अगर अल्लाह ने चाहा तो. इंशाल्लाह. आप मुझे बताएं कि आप डॉक्टर बन रही हैं. डॉक्टर में भी सेक्शंस होते हैं, फील्ड होती है, तो किस चीज़ में आपको ज़्यादा? तो हम इससे हर दिन पूछते हैं. हाँ, बताओ. ये मैं बताती हूँ. ये डर्माटोलॉजिस्ट बनेंगी. मैंने सोचा है कि ऐसी जॉब करनी चाहिए आपको MBBS में भी जो आपको ड्रेन ना करे. तो आई विल चूज़ अ फील्ड जिसमें मैं अपने क्लिनिकल आवर्स खुद सेट कर सकूं. आई डोंट वांट टू वर्क फॉर एनीवन. वो इनके पास सेलिब्रिटीज आएंगी, मॉडल्स आएंगी, यू नो. क्या बात है. आप बताएं. मेरे फ्यूचर प्लान्स, आई एम मीडिया बायर, और आई थिंक इसी फील्ड में कंटिन्यू करेंगे. अच्छा, हमारे ऑडियंस को समझ नहीं आई होगी कि व्हाट इज मीडिया बायर. व्हाट इज मीडिया बायर? वी बेसिकली वर्क विद एन एजेंसी, ब्रेन चाइल्ड कम्युनिकेशन. सो देयर इज़ दैट. आपको जो भी एड नज़र आता है फ़ोन पे, डिजिटल मीडिया पे, TV पे, रेडियो पे, प्रिंट पे, वी आर बिहाइंड दैट. क्या बात है. आप बताएं. क्या प्लान है? मेरे plans, I really want to be a strategist in the future because that really interests me.
क्या बात है, मेरे साथ फ्यूचर के जो हैं स्टार्स मौजूद है जिन्होंने फ्यूचर बनाना है। इसमें डॉक्टर भी हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, मीडिया बायर्स भी हैं, और वो जो छोटा सा बच्चा ना, आप देखिएगा, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, इस बच्चे ने बहुत बड़ा आदमी बनना है बड़े होकर। अच्छा, जैसे कि आपको पता है 2025 का जो है इख्तिताम हो रहा है और 2026 स्टार्ट हो रहा है, तो इनसे पूछते हैं न्यू ईयर रेवोल्यूशन क्या है इनकी, आप बताएं। My New Year resolution is to work on myself, my mental health, and being a better person. My New Year resolution is to be good at what I do and, you know, treat people with kindness. 2025 के हालात को देखते हुए 2026 में सिर्फ पीस और खुशी की दुआ करते हैं। That's it. Be less of a people pleaser. Very nice. Literally मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। Thank you so much. आपकी New Year resolution क्या है? Oh my God, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बेसिकली मैंने अपना वेट कम करना है। मैं सच बोल रही हूँ। Oh my God, हर साल सोचती हूँ, बट इस साल पक्का वादा करूँगी। I'm with her. So we have Ahmed bin Waheed, or he is looking gorgeous. Literally, just look at his lashes, his base, his lip color. Oh my God! And at your dress, wow! Show me your hands, your nails. Yeah. He actually done his nails as well. How are you? I'm so good. How are you? First of all, walk for us. Just do it. अच्छा, मुझे बताएं, you are makeup artist, right? Yep, I am. And you are celebrity makeup artist? Yes, I'm a celebrity makeup. अच्छा, मुझे बताएं कि क्या चीज़ को आपको डर लगता है सेलिब्रिटी में? मैंने सुना है कि सेलिब्रिटीज़ को गुस्सा आ जाता है मेकअप करते हुए, अगर ज़रा सा ज़ोर से स्पंज लग गया है या कुछ हो गया है। कुछ स्कैंडल्स भी हम देखते रहते हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा लगता था, ऐसा सुना हुआ था। यू ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली आपको मैनर्स होने चाहिए, एथिक्स होने चाहिए। आपका पहले आपका काम, लाइक आई एम डूइंग मेकअप लाइक टुडे, सो इससे पहले मेरा आपका जो क्लाइंट है, आपका जो स्टार है, सेलिब्रिटी, हु एवर द पर्सन, उसके साथ आपका आइस ब्रेक होना चाहिए। अब यू डायरेक्टली यू जस्ट बिकम रूड और नेक्स्ट द पर्सन इज़ रूड, सो दैट्स नॉट योर बैड एंड नॉट हिज और हर बैड। सो सबसे पहले अपना आइस ब्रेक करो, और ऑब्वियसली जो भी काम कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, मैं किसी का वो भी नहीं करूँगा। सो अपना आइस ब्रेक होने के बाद ऑब्वियसली चीज़ें थिंग्स नॉर्मल, सो वो एग्जैक्टली वो ना भी आप करो, फ्रेंड जोन में ना भी जाओ, आपको ऑब्वियसली अपने काम में आपकी जो कमांड है वो होनी चाहिए। सो इट्स अ बिग डील। बिल्कुल, क्या बात है, कवर करना आना चाहिए आपको, हैंडल करना। एग्जैक्टली, या दिस इज क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं सबसे गुस्से वाली सेलिब्रिटी कौन है? आई डोंट थिंक सो कोई है। यू हैव टू नेम समवन। नो, आई नेवर फेस दैट। Okay, very nice. Okay, tell me. So sweet, polite, and professionally, I would like to say that. So yeah. अभी आपने फैशन शो देखा अंदर, Yeah. आपको क्या लगा कि आप ज़्यादा अच्छा कर सकते थे? मतलब मेकअप्स देखे आपने, उनका ड्रेस, हेयर डूज, क्या लगा? No, everything was really done really well, and everything was on point. So I enjoyed that. Very nice. Okay, tell me about your outfit. Look at yourself, amazing. You just see me. Don't ask Just me. see him. Just look at his this thing. Capricorn. Tell me something about this owl. Nothing more than. Like you just pick it and wear it. That's it. No, that suits me actually. अच्छा, I क्या never है? wear like ना this. I just pick it up कहते and- हैं कि बुरी नज़र से बचाता है। So मुझसे पहले इधर आती है नजर। यहीं पे रह जाए, please. And what about this peacock? Yeah, it Show is us. the Oh my God. peacock. Yeah, this is cause obviously अच्छा लग रहा है पहले नंबर पे, तो cause इसमें I'm an artist, so obviously colors attracts me. So इसमें आप देख सकते हैं बहुत से colors हैं. So अच्छा, मुझे बताएं कि your family support you yeah, always. as a makeup artist. Yeah, they did. Cause मुझे लगता है कि मुझे मेरी limitations पता है. ये खुद अपना नाम बताएंगे, कौन है, क्या करते हैं और यहाँ क्या करने आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद आतिफ। आपका नाम? जैन इम्तियाज़। हाँ, पूरा नाम जाने ना। फरहान मलिक। मुतीबा बिनते ज़िक्रिया। इकरा नदीम। अब्दुल्ला अफजल। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है आमिर सेल्फी बॉय, और आपसे का सेल्फी लेके जाऊंगा। आमिर सेल्फी बॉय, और ये बड़े वायरल हैं टिकटॉक और इंटरनेट पे। मुझे बताएं, सबसे पहले अपनी डेजिग्नेशन बताएं, आप क्या करते हैं और यहाँ पे क्या करने आए हैं?
मैं मीडिया में जॉब करता हूँ और हम कवरेज करने आए हैं और आप आ गए हैं तो अब इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा, मतलब एम ही आपने कहा चलो हम भी। हाँ जी, हाँ जी जी, नहीं खड़े नहीं, अब काफ़ी इंटरव्यू पहले भी दे चुके हैं। क्या बात है, ही इज़ अ सेल्फी बॉय। आप बताएं। मेरा नाम तो पूछ ही लिया आपने, मैं ऑडियंस कोऑर्डिनेटर हूँ, ऑडियंस मैनेज करते हैं बस। इतनी छोटी सी एज में आप इतने बड़े बड़े काम करते हैं। बस 30+ एज है मेरी। उम्र चोर। क्या छोटी सी एज में कहा मैंने नहीं, मेरी एज 20 है। आप छुपे रहने देना, रिंकल्स क्या हो गया। आप बताएं। जी, मैं ब्यूटिशियन हूँ। मेरा नाम तो मैंने बता दिया कि मैं इकरा नदीम हूँ। तो जाहिर है मेरी फील्ड थी, मैं देखने आई हूँ कि मैंने कहा ज़रा देख के मॉडल्स और इन्जॉय किया, मज़ा आया। और ये मेरे भाई हैं, मैं भी इनके साथ एज अ कोऑर्डिनेटर काम करती हूँ। क्या बात है। थोड़े बंदे भेज ही देती हूँ अगर ये जलील बंदा जो है ना। अच्छा बीप अच्छा मुझे बताएं, आप क्या करने आए हैं, आप क्या करते हैं और यहाँ क्या? सेम। नहीं, हमें सेम नहीं। मैं भी ऑडियंस कोऑर्डिनेटर हूँ, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जो शोज़ चलते हैं वेरियस शोज़ का ऑडियंस कोऑर्डिनेटर हूँ। MF एंटरटेनमेंट के नेम से एजेंसी है, ठीक है, उसमें हम काम करते हैं और बस आवाम को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप बताएं। मैं भी कोऑर्डिनेशन करता हूँ, ये अब्दुल्ला अफजल, ये फरहान। इस वक्त मेरे साथ आप चैनल्स पे जितनी ऑडियंस देखते हैं, जितने लोग देखते हैं, वो ये सब कोऑर्डिनेट करके उनको वहाँ पे बुलाते हैं, ऐसे ही है क्या? पीछे जो हैं वो बड़े, जो हमारे हेड हैं वो मलक फ़ारूक साहब हैं जी, जो हमारे बॉस हैं, उस्ताद हैं, भाई हैं, तो उनके साथ ताबिश हाशमी का शो करते हैं। आई नो मुझे लोग अक्सर ताबिश हाशमी का छोटा भाई भी कहते हैं। नहीं, आपको बहुत खुशफहमी है, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं लोग मुझे। इनको इमरान अशरफ का चेला भी कहते हैं। आपको साबित करना पड़ेगा 2-3 जुगते मार के। नहीं, वो साबित आज ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि आज मैं शेव करवाया हूँ, इस वजह से मैं ताबिश लग नहीं रहा। आपने अब कह दिया, अब आपको करना पड़ेगा। नहीं कर सकता। आप बताएं, सेल्फी बॉय, आपकी पहली सेल्फी कौन सी वायरल हुई थी? मेरी, आप पाकिस्तान के किसी का नाम लेंगे उनके साथ मेरी सेल्फी है, लेकिन जो पहली सेल्फी थी वो शहबाज शरीफ साहब भी थे, जो हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ ही। वो कहते हैं, इनका क्लेम है कि आप नाम लें उस बंदे के साथ मेरी सेल्फी है, हुमायूं सईद जी उनके साथ है, माहिरा खान उनके साथ है, आपको दिखा भी दूंगा। हम सबूत के साथ बात करेंगे, स्क्रीन पे चलाएंगे साथ साथ। जी, आप जिनका नाम लेंगे, जितने खिलाड़ी पाकिस्तान के सियासतदान हैं, सबके साथ मेरी, हीरा मानी उनके साथ भी है, इमरान खान के साथ भी है, शहबाज शरीफ के साथ भी है, इमरान खान के साथ भी है। ये क्या हो रहा है? नवाज शरीफ के साथ भी है। आप जिनके साथ गएंगे, असल में मैडम मेरे ना तस्वीरें खींचने का जुनून है, तो मैं अब इवेंट पे भी आया हूँ, मेरी छुट्टी हो गई है, लेकिन अभी मैं तस्वीरें जैसे बना रहा हूँ, उनके साथ भी है। और मैडम जी मैं 2000 ये बुशरा बीबी के साथ है, उनके साथ भी है, हूँ मैं दिखाऊंगा मेरे पास। कौन है बुशरा बीबी? पर इमरान खान साहब की बेगम। ये बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं, आज तक किसी ने उनकी सेल्फी नहीं देखी किसी के साथ। उनके साथ भी है सेल्फी, सेल्फी निकल आई, जो कह देना है। मैं चैलेंज हो रहा है इस वक्त मेरे पास है, और आप और भी किसी का नाम लेंगे? हाँ जी। ऐसे माफी नहीं होना। ना आप ये अगर ये साबित हो गया कि इनकी सेल्फी है तो आप बताएं क्या? मेरी बात सुन, मैंने तो वो कह दिया है, वो मैंने कह दिया हुआ, लेकिन अभी कल ही इसकी मेरी डिस्कशन हो रही थी, मैंने इसने डीपी चेंज की अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल की, उसमें नवाज शरीफ भी है, इमरान खान भी है, हुमायूं सईद भी हैं और सब है। इन्होंने ना पिक्चर्स का कोलैज बनाया हुआ है, इमरान खान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ। मैंने डीपी लगाई हुई है। नहीं तो आपको कभी किसी ने पकड़ा नहीं, किसी ने गायब नहीं किया आपको कभी? नहीं गायब नहीं किया, कोई मुझे पकड़ ले तो मैं तस्वीरें दिखा के छूट भी जाता हूँ। बस आप इनकी, मैं नंबर चला दूंगी तो व्हाट्सएप सेव करके इनकी डीपी जरूर। कोई ताल्लुक नहीं है मैं एक शरीफ आदमी हूँ। क्या बात है, ही इज अ सेल्फी बॉय, इनको फॉलो करें, इनको ढेर सारे सब्सक्राइबर्स दें। मेरा शहजादा है जी। नेक्स्ट जेन टॉक।